Hello my beautiful souls, welcome to my channel. Today we are going to do a reading. The topic is love or arrange, what kind of marriage is destined for you. It's a requested video plus also a general reading. So take only those messages which resonates with you and leave the rest. Like as always, we have two groups, group number 1 and group number 2. Use your intuition and choose any group which you have drawn into, and I will meet you at my group number 1. Hello group number 1, today we are going to see love or arrange, what kind of marriage is destined for you. First, we are going to see, will you have love or arranged marriage? So, the answer is, with the Emperor card, you will have a love marriage. So, here, you will have, in this relationship, or you will have the power to decide whom you want to marry, and your family will support the decision. When you will introduce your person to your family, they are going to love them instantly. So, So now we are going to see the obstacles in the way of your marriage. For some of you, there is a possibility that you or your family is taking excessive caution regarding the matter of choosing the right person for you. And for some others, I'm seeing the lack of spontaneity. Here, I want to say that if you want something truly, then don't stop yourself until and unless you get your required or your desired thing. The other obstacles I am observing here is that some of you are very busy with your career or finances that you don't have time for thinking about marriage. So also focus on this matter, because if you want to get married, then at first you have to find the right person for you. And high financial expectation or ambition could be another obstacle here for this group. Here I can see that or feel that your expectations regarding finances is very high. You want to say that we all want financial comfort in our life and have financial expectations from our future spouse, but this expectation should not be so high that it becomes the main obstacle of getting married. With the Sun card, there is a possibility that for some of you, you have debilitated Sun at your birth chart, or the Sun's position at your birth chart is not good. So if you do remedies related to Sun, then it will be very helpful for you. Now we will see those who are 29 years old or 29 plus when they will get married. So now we will see those who have 29 years old or 29 plus when they will get married. For some of my specific viewers, there is a possibility that your marriage will happen within 8 weeks or 56 days from today onwards. And for some others, I'm feeling that you will get married at the age of 36 or maybe 9th, 18th, 27th day of upcoming 9th, 18th, 27th day of any month in upcoming 4 years. Or there is a possibility that your marriage could happen in Aquarius, Taurus or Leo season, or Scorpio season can be also. I'm seeing also Scorpion season. So basically, the energy I'm getting here is that your marriage will basically happen within 4 years from now. So basically, it will be happen from 4 years from today onwards, or whenever you watch this video. So from that day to within 4 years, your marriage will get happen. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Hello group number 2. Today we are going to see love or arrange, what kind of marriage is destined for you. So during my shuffling, I got this card, letting go. So with letting go card, and especially with number 8, I am seeing an arranged marriage for you. As number 8 is related with Saturn, so here I can sense that your marriage decision will be based on duty or responsibility towards your family or loved ones, because when it comes to number 8 or Saturn, it suppresses the romantic side or love angle, and it uplifts those responsibility or seriousness or practical side of your life. I'm getting that chances of arranged marriage is very high for you. Now we are going to see the obstacles in the way of your marriage. So the first obstacles you have in getting married is your lack of intensity. So here I'm getting a vibe that you want to get married because it feels natural for you. When your family asks you or talks about your marriage, you simply answer them like, yes, I want to get married. But the main thing is that, are you really want to get married? Ask yourself,
ask your true self, because I'm feeling like you don't have the desire or intensity or intense feeling to get married right now. And for very specific of my viewers, here, don't get me wrong, but your mindset regarding the qualities of your future spouse is very rigid. Maybe you or your family have set some very specific criteria which your future spouse will have to fulfill. It could be based on finances, profession, look, property, age gap, caste of your future person. And till now, you are not finding the right person who can meet all those criteria, and your marriage is getting delayed. So think about it. And the last card we have is clinging to the past. So here you are still attached to your ex. It is not for all. It is for some of my specific viewers. Here you are still attached to your ex, who may have already moved on in their life. Your memory with them prevents you to getting married. And for others, maybe in your surroundings or friend circle, you have seen people whose married life ended very tragically, and its negativity impacts your concept about marriage. So this could also be a reason for not getting married. Now we are going to see those who are 29 years old or 29 plus when they will get married. So for some of my viewers, you will get married at from November 13 to December 12 within 3 months, or there's a possibility that your marriage will happen 8 years from now. So I'm basically saying 8 years. And for some of my other viewers, I can see that you will get married from 3 years from now or 5 years from now. So I'm getting those possibilities for you. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in my next video. Till then, bye bye. हेलो माय लवली व्यूवर्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और साथ ही साथ एक जनरल रीडिंग है, तो आप वही मैसेजेस लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट करती हो। हमेशा की तरह हमारे पास 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अब अपना इंट्यूशन यूज़ करके कोई भी एक ग्रुप चूज कीजिए। मैं आपको ग्रुप नंबर 1 में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आज हम देखेंगे कि आपके लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। तो हमारे पास आंसर है कि एम्पायर कार्ड के साथ मुझे आपकी लव मैरिज होती दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे आपके जो मैरिज का डिसीजन है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। आपके हाथ में पावर होगा कि आप किस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो। उसका फैसला लेने के लिए आप सक्षम या पावरफुल रहोगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपकी फैमिली इस डिसीजन में आपका सपोर्ट देगी। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अपने फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाओगे ना, तो उसी वक्त आपकी फैमिली उन्हें बहुत पसंद आने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कि आपके मैरिज में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं या फिर आपकी शादी में क्या बाधाएं हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आप या आपके फैमिली आपके जो फ्यूचर स्पाउस को जब चूज़ करने की बात आती है, तो वो बहुत एक्सेसिव कॉशियस ऐसा हो रहे हो आप लोग। अब ज़्यादा कॉशियस बन रहे हो, तो ये एक मतलब ऑब्स्टिकल जैसा बन गया है आप लोगों के लिए। और कुछ दूसरे के लिए मैं यहाँ पे ये महसूस कर रही हूँ कि आपके ना लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऐसा मुझे दिखाई दे रही। या फिर मैं ये कहूँ कि आप शादी तो करना चाहते हो, लेकिन अगर आपको आप जो अपने लाइफ पार्टनर में जो ढूंढ रहे हो वो क्वालिटीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो आप थोड़ी देर के बाद मतलब सर्च करके मतलब आप रह जाते हो, मतलब वो प्रोसेस बंद कर देते हो कि नहीं अभी ऐसा तो नहीं मिला जैसा मैं चाहती थी, ऐसा तो मुझे नहीं मिला। तो फिर 2-1 साल रुक जाते हैं या फिर कुछ महीने के लिए ये प्रोसेस रुक जाते हैं। उसके बाद फिर से देखेंगे कि कहीं अच्छा लड़का या फिर कहीं अच्छी लड़की मिल जाए, ऐसा जो है ना, तो ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि आप ना आप कॉन्टीन्यूसली मतलब जो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ढूंढने के लिए जो आप प्रोसेस कर रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन किसी मैट्रिमोनियल साइट पे जा रहे हो, या फिर अपने फैमिली के थ्रू या रिलेटिव्स के थ्रू मतलब फ्यूचर स्पाउस की जो सर्च आप कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखो जब तक आपको आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं मिल जाते। और तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि जब तक आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जब तक आप मुझे वो चीज़ आपको नहीं मिल जाती ना, तब तक के लिए आप रुक ना जाओ, तब तक आपको अपनी कोशिश जारी रखो। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। और बाकी ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स ना अपने फाइनेंस या फिर अपने करियर को लेके इतना बिजी हो गए हैं कि शादी के बारे में सोचने का उनके पास वक्त भी नहीं है। और इसी तो यहाँ पे यह है कि आप उसमें फाइनेंस के साथ साथ या फिर अपनी करियर के साथ आप इस मैरिज के बारे में भी थोड़ा अपना टाइम दो, या फिर मैरिज के बारे में भी आप सोचो। क्योंकि अगर आप सच में शादी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको तो अपने लाइफ पार्टनर को मिलना पड़ेगा या फिर उनकी चर्च करने या उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तो ये है एक बात। और यहाँ पे हाई फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन और एम्बिशन भी थोड़ा मुझे ऑब्स्टिकल जैसा दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर कोई अपनी लाइफ में ना कंफर्ट के साथ जीना चाहता है, या फिर अपनी लाइफ में कंफर्ट या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी सब चाहते हैं। लेकिन जो अपने फ्यूचर्स पास को लेके जो आपके फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस है ना, वो इतना भी हाई नहीं होना चाहिए कि वो आप जाके आपके मेन मैरिज को लेके मेन ऑब्स्टेकल ही क्यों ना बन जाए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और सन कार्ड के साथ मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में जो सन है ना, वो एक डेविएटेड सन है, या फिर ये कहूँ कि शायद सन का पोजीशन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो आप सन रिलेटेड रेमेडीज अगर कर सको तो आपके लिए मैरिज के लिए ये बहुत ईजी होगा, या फिर आपके मैरिज में ये हेल्पफुल होगा। अब हम देखेंगे कि जिनकी एज 29 हो चुकी है या फिर 29 प्लस हो चुका है, तो उनकी शादी कब होगी। तो हमारे पास है 8 ऑफ वंस, 7 ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड कार्ड। सो यहाँ पे मेरे कुछ स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आपके मैरिज अभी से मतलब जब आप इस वीडियो को देखोगे ना, उस दिन से लेके या फिर उस वक्त से लेके 8 वीक्स तक या फिर 56 डेज तक विदिन 56 होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रही है। और बाकी सब के लिए यहाँ पे ये मुझे महसूस हो रहा है कि जब आपकी एज 36 होगी तो यहाँ पे मुझे आपके मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। 36 एज में आपकी मैरिज पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। और या फिर ये कहूँ कि 9, 18 और 27th डे ऑफ एनी मंथ आपकी मैरिज हो सकती है, या फिर अपकमिंग 4 ईयर्स में आपके 9, 18, 27 इन किसी डेट में से आपके एक डेट में आपकी शादी हो सकती है। मुझे ऐसा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहे हैं। और या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक्वेरियस, टॉरस और स्कॉर्पियो सीजन में आपकी शादी हो। लेकिन बेसिकली मुझे यहाँ पे ना जो आपके लिए टाइम लिमिट दिखाई दे रही है, वो मुझे बेसिकली यहाँ पे 4 ईयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप इस वीडियो को देखोगे उस वक्त से विदिन 4 ईयर्स मुझे आपकी शादी की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, आज हम देखेंगे कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। सो जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे यहाँ पे आपके लिए लेटिंग को कार्ड मिला। सो लेटिंग को कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है। यहाँ पे मेरे बेसिक मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स के लिए यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज की वाइब आ रही है। एंड अगर हम इस कार्ड की बात करें तो इस कार्ड में लेटिंगो के साथ और स्पेशली विद नंबर 8 के साथ मुझे आपके लिए अरेंज मैरिज दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि नंबर 8 यहाँ पे नंबर 8 सैटर्न के साथ रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके मैरिज का जो डिसीजन है ना, वो आपके ड्यूटी या फिर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फैमिली के लिए आपकी जो ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उस पर डिपेंड करेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा फील, और जब बर्थ सैटर्न की आती है ना, तो ये किसी भी रिलेशनशिप में ये रोमांटिक साइड को सप्रेस करके जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर प्रैक्टिकल साइड के बारे में बोलो, या फिर आपके फीलिंग्स, ड्यूटी वाली फीलिंग्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग्स जो है ना, उसको ज़्यादा अपलीव कर देता है सैटर्न। सो इसलिए मुझे यहाँ पे आपके लिए अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि आपके मैरिज में कौन सी ऑब्स्टिकल या क्या बाधाएं हैं आपके मैरिज में। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑब्स्टिकल यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके मैरिज में ना आपके साइड से मुझे लैक ऑफ इंटेंसिटी ऐसा दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे मुझे ये वाइब आ रहा है कि आप तो शादी करना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए एक नेचुरल प्रोसेस है, या फिर अपने आसपास अपने मम्मी पापा को देखा है या फिर सोसाइटी में देखा है कि लोग मतलब शादी करते हैं, इसलिए आप शादी करना चाहते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी फैमिली आपसे पूछती है, या फिर जब आपकी फैमिली आपकी शादी के बारे में बोलती है, तब आप उनसे सिंपली आंसर कर देते हो कि हाँ मुझे शादी करना है, मैं कर लूँगा, या फिर मैं करना चाहती हूँ, ऐसा आप ऐसा बोलते हो। लेकिन यहाँ पे आप खुद से एक बार अच्छे से अपने सेल्फ से, अपने इनर सेल्फ से आप एक बार रियल में पूछो कि क्या आप सच में शादी करना चाहते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना आपकी साइड से मुझे ये शादी करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए जो डिज़ायर होती है या इंटेंस फीलिंग जो है ना शादी करने के लिए, वो मुझे उस फीलिंग्स या डिज़ायर में कमी दिखाई दे रहा है मुझे आपकी साइड से। और यहाँ पे कुछ वेरी स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके माइंडसेट, आपके फ्यूचर स्पाउस की जो क्वालिटीज़ को लेके जो आपकी माइंडसेट है ना, वो बहुत मतलब रिजिड मुझे ऐसा दिखाई दे रही है। मे बी या आप और या फिर आपके फैमिली ने ना बहुत कुछ मतलब वेरी स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट करके रखा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, और जो आपके फ्यूचर स्पाउस को फुलफ़िल करना पड़ेगा आपसे शादी करने के लिए। एक आइडिया ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ भी हो सकता है, लाइक उनके फाइनेंस को लेके, प्रोफेशन, लुक्स, प्रॉपर्टी, एज गैप, और या फिर ऐसा हो सकता है कि कास्ट, आपके पर्सन के कास्ट को लेके, इन सभी चीज़ों को लेके
या फिर कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा, आप आपने सोच के रखा है कि आपके फ्यूचर्स पास के साथ इतना फाइनेंस होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, उनका प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए, या फिर वो देखने में ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे मतलब आपके डिमांड्स हाई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब तक ये आपका सिचुएशन ये है कि अभी ये सिनेरियो बन गया है कि आप जो क्राइटेरिया आपने सोच के रखा है ना अपने फ्यूचर्स पास के लिए, वो क्राइटेरिया के पर्सन आपको अब तक नहीं मिल रही है। तो फिर इसी वजह से आपके मैरिज में डिले हो रहा है। सो आप इस बात को थोड़ा मतलब ध्यान में रखिएगा। और लास्ट कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है क्लिंगिंग टू द पास्ट। और तो यहाँ पे ये है कि कुछ गिने चुने व्यूअर्स के लिए है कि आप अभी भी ना अपने एक्स के फीलिंग्स से, अपने एक्स के लिए जो आपका फीलिंग्स है ना, उससे आप अभी तक उभर नहीं पा रहे हो। और अपने जो एक्स के लिए आपका दिल में जो प्यार है ना वो अभी भी है, और इसी वजह से आप अपने मैरिज में वो चीज़ें, आपके एक्स के लिए आपका जो फीलिंग्स है ना वो आपकी शादी में रुकावट बन रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ दूसरे व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपने ना, ऐसा हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके आसपास आपने ऐसे मैरिज देखे हैं जहाँ पे मतलब कपल्स के ब्रेकअप हो चुका है, या फिर उनको डिवोर्स हो चुका है, या फिर कोई उनकी मैरिज एक ट्रेजिकली बहुत मतलब एंड हो चुका है, एक बुरी तरीके से उनकी मैरिज की मतलब एंडिंग हुई है। तो या फिर वो सिनेरियोस या फिर वो एक्सपीरियंसेस जो आपने देखा है, उन एक्सपीरियंस आपके दिमाग में जो उन एक्सपीरियंस निगेटिवली आपके दिमाग पे इम्पैक्ट डाला हुआ है, और आपके जो कॉन्सेप्ट है ना मैरिज को लेके उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप अभी मतलब शादी के लिए थोड़ा मतलब पीछे आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर ये कहूँ कि आपकी शादी में डिले हो रहा है, ये भी एक रीज़न है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जिनकी एज 29 हो चुके हैं या फिर 29 प्लस हो चुका है, तो उनकी मैरिज कब तक होगी। तो हमारे पास है किंग ऑफ वंस, टेम्परेंस कार्ड एंड द स्टार कार्ड। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे चांसेस है कि अब नवंबर 13 से दिसंबर 12 दिसंबर तक अपकमिंग 3 वीक्स में अपकमिंग 3 मंथ्स में आपकी शादी मुझे दिखाई दे रही है कुछ व्यूवर्स के लिए। और बाकी के लिए यहाँ पे मुझे जब आप इस वीडियो को देखोगे तब से लेके 8 साल तक या फिर 8 ईयर्स तक इस वीडियो को देखने के दिन से ही 8 ईयर्स तक मुझे आपकी शादी की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है, और कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि देखिए एक जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगा, तो मुझे मतलब कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे मुझे वाइब मिल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आज से मतलब 3 ईयर्स का मुझे टाइम टेबल दिखाई दे रहा है, टाइम दिखाई दे रहा है, तब तक आज से 3 ईयर्स तक आपकी शादी हो जाएगी। और कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे मुझे 5 साल दिखाई दे रही है। तो मतलब आप जब आप इस वीडियो को देखोगे तब से लेके 8 ईयर्स तक आपकी मैरिज मुझे दिखाई दे रही है। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।